ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਕਿਤੇ ਛੀਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਓਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਿਡੌਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਿਡੌਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਡੌਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਔਰ ਰਹੀਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਜੇ ਇਹ ਨਾ ਵੀ। ਜੀਵਨ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਗਾਹਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬੈਠ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਗਾਹਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਗਾਹਾਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇਗਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਦੁੱਖ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬੇਨਿਆਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੇਨਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬੇਨਿਆਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਓਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਝੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਤਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰਸਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਵੇਂ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਏਗਾ, ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋਤੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਤਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ।
आके उस तोते नूं ये गल दसी, तेरे जिन्ने भैन भरा ने सारे ही धरती ते डिग गए ने, जिहड़ा वो अंदर बैठा सी वो भी डिग गया। तो बड़ी कमाल होई, इनू ना दसदा घट्टो घट्ट ये ते बच जांदा। वो तोते नूं पिंजरे चों बाहर कढ़िया ते लैके चला गया, इहदा संस्कार करो। पिंजरे चों बाहर कढ़िया तोता उड़ के महल दे उत्ते बह गया। जदों ही महल दे उत्ते जाके बैठा, राजा कहंदा ये धोखा है मेरे नाल। कहंदे धोखा नहीं है, तू जो मैनू मैसेज सुनाया है वो मेरी जात वालियां दा मैसेज सी। की कहंदे उन्हां दा मैसेज ये सी, जे जिंदगी विच सुख मानने ने, आनंद बनने ने, तां मुर्दा बन जा। जे अपने आप नूं गवाएगा तां आनंद मिलेगा, आप गवाइए तां शोह पाइए। और कैसी चतुराई, होर कादियां चतुराइयां ने। इस करके आनंद की प्राप्ति गुरु के शब्द विच है, उवें नहीं है। परमात्मा की याद विच आनंद है। जदों तई उसकी याद नहीं, वो साडी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। इस करके मनुख की जिंदगी का हिस्सा उसदा घर है, परिवार है, रिश्तेदार ने। परमात्मा उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, उसकी याद का हिस्सा नहीं है, उसकी सिमरती का हिस्सा नहीं है। हुण इस करके याद रखना, जिथे परमात्मा की याद नहीं जिस मन में, उत्थे कुछ भी नहीं है, दुख ही दुख ने। उस तो विसर जाना दुख ही दुख ने, अतृप्ति है। मनुख के अंदर भखारीपन चालू ही रहिंदा है। इस करके एक कदे मत जानना, जेड़े मनुख परमात्मा की शरण विच नहीं आए हैं, वो जिंदगी विच सुख ने नहीं। जो कुछ मिले है वो मिलन करके भी परेशान ने। शरीरिक तल ते जो कुछ मिलया होया है उसका मनुख आनंद माणदा है। जो भी खाएगा, जीव थानी खाएगा, उसका आनंद थोड़ी देर रहेगा। ठीक है, इस तो अगे इसको लमाया घूमण लई किते शिमले चला जाएगा, किते राजस्थान चला जाएगा, होर अगे चला जाएगा। जिन्नी देर वो तस्वीरां वेखेगा, एक बारी जाएगा, दो बारी जाएगा, तीजी बारी कहेगा नहीं उत्थे की है, पहला भी जाके आए। अखां नालों नाल तृप्त हो जाणगियां। जीव एक पदार्थ नूं बार बार खाएगी, जिहदा रस दो बारी ले लेगा, हुण नहीं खानी, बार बार इनू खावांगे। जो कुछ कन्ना थानी सुन रहा है, किसी दी गल्लां सुन रहा है, वही गल्लां बार बार सुनाएगा, मन कहेगा नहीं मैं नहीं ये सुननी। पर महाराज कहते तू बार बार एक चीज़ सुन सकता है, तो जिन्नी बारी वो सुनेगा, सुरत एक बारी चल पई, तेरे अनुभव रोज दी रोज नवे हो जाएंगे। बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत एहो मन तन तृपिया। तेरा मन ते तन ठंडा हो जाएगा। इस करके मनुख दे अंदर सब तो वड्डी भावना पहला आरंभ होनी चाहिए है, वो कि मन करके अपने आप को समर्पण करना। मन करके अपने विचारां करके अपने विचारां को पिछे रख लेना। जो उसके गुरु के विचार ने, उन्हां विचारां को अपनी जिंदगी में धारण करना। इनू कहते ने ओट लैनी। इनू कहते ने अपना मन ते तन गुरु नू दे देना। जदों तई अपना मन ते तन दोवें नहीं देगा, उदों तई इसकी जिंदगी में आनंद नहीं है। ठीक है, तन करके मत्था टेक सकता है, मन करके नहीं टिकिया। जिन्हां दा मन करके टिक जाता है, उन्हां दियां पछाण महाराज ने अगे लिखियां ने। हुण अगे जिन्ने भी गुण इस पौड़ी विच कहणगे, वो उन्हां दे गुण ने जिन्हां ने मन करके अपने आप को झुका लिया है। क्योंकि मन नूं किसी दे अगे झुकाउणा ये बड़ी वड्डी कोशिश है। मन किसी की गल सुन के राजी ही नहीं है, मन के राजी नहीं है। ये अपनी ही गल सारिਆਂ ਨੂੰ मनवाना चाहता है। इसकी ये शुरू तो आदत ही ये है। मन अपनी गल दूजिਆਂ ਨੂੰ मनवाना तो चाहता है, मननी नहीं चाहता। इस करके महाराज कहते तू मननी नहीं चाह रहा, जिन्हों ने नहीं मननी है, याद रखी जो नहीं मन रहे जिंदगी विच नरक दे घोर विच
लगातार पए हुए ने, दुखों में पए हुए ने। दुख की ने, और मैं ये भी कह दिया, बड़ी बारी बेनती पहला भी की है, दुखों दियां स्लैबां सारियां वास्ते वक्खो वक्खरियां ने। जिवें जिन्ने बैंक होण, सारे बैंकों की इंटरस्ट की स्लैब वक्खो वक्खरी हुंदी है, इस करके दुख की स्लैब भी हर एक लई वक्खो वक्खरी है। हरेक मनुख लई दुख वक्खो वक्खरा है। जिस कोल पुत्र नहीं है उन्होंने दुख यह है, बाकी तो सारा कुछ है, पुत्र नहीं है मिल जाए वह यह दुख है। हुण किसी को पुत्र तो है, घर नहीं है, वह कहता ये तो है कि घर मिल जाए, वो दुख है। हुण किसी को घर तो है, उस कोल गड्डी नहीं है, वह दुख वो है। हुण इवें ही दुख है। मैं बड़ी बार कहा, जिहड़ा चोर है, चोर किसी के घर चोरी करन जांदा है, अगे वेखदा लाइट जग रही, कहता कल तो नहीं सी, अज फिर जग रही है, चोरी नहीं कर पाया, वो वास्ते दुख वो है। सारिਆਂ वास्ते दुख वक्खो वखरे ने। असल दे विच ये जिहड़ियां चीज़ां गिणाइयां ने, ये मनुख दियां मंगां ने ते दुख लगदियां ने, दुख है नहीं हैं। पदार्थां दा अभाव ही मनुख नूं दुख लगदा है। मेरे कोल ये चीज़ नहीं है तां मैं दुखी हाँ, फिर ये दुख तो सदा ही बनिया रहना है। क्यों? मंगां उठदियां रहणगियां, तृप्ति नहीं होनी, ये तो दुख बने ही रहेगा, फिर तो दुख मिट ही नहीं सकता। फिर जे मनुख कहे मेरा दुख मिट जाएगा, फिर माफ़ करना, बाणी ते कहती तेरा दुख सारी उम्र ही नहीं मिटना। फिर तू अपनी जिंदगी में दुखी आया, दुखी जीवेगा, दुखी ही चला जाएगा। तेरी जिंदगी में आनंद आना ही नहीं है। क्योंकि आनंद आना है इन्हां चीज़ों को समझण तो बाद। मेरी जिंदगी में ये दुख है। मैं कल भी ये बेनती कर रहा सी, जो अपनी जिंदगी में असी बनना चाहुंदे हैं, जिथों तई माया कमाउणी चाहुंदे हैं, जिन्होंने जेड़े जेड़े भी दुख ने वो चीज़ां दूजियां कोल ते होणगियां ही शहर में। मान लो एक मनुख ये चाहुंदा है मेरे कोल किते 5-7 करोड़ दियां 5 दुकानां होण ते मैं सुखी हो जावांगा, बाकी तो सब कुछ है। फिर वो चीज़ां शहर दे विच कईयां कोल होणगियां, जरूर होणगियां। उन्हां दी जिंदगी का विश्लेषण करो कि वो सुखी हो गए ने। उन्हां दी जिंदगी विच तुसीं पाओगे या तो तुहाडे जिन्ने दुखी ने या उस तो भी ज़्यादा ने। सुख नहीं है, उत्थे भी आनंद नहीं है। मैं फिर कह दिया, जिंदगी विच सुख मिलता है, जिहड़ी मंग हुण है वो पूरी हो जाए सुख है। पर वो कल्ली मंग दा पूरा हो जाना ही सुख नहीं है, फिर मंग खड़ी हो जाएगी। मान लो अज मंग ये है मैनू घर मिल जाए सुख हो जाएगा, वो मिल गया है, फिर अगे अगली गल शुरू हो जाएगी। फिर याद रखना, ऐसे सुख सारी उम्र ही मिलते रहेंगे ते ऐसे दुख भी सारी उम्र ही मिलते रहेंगे। इस करके मनुख ना उहदे दुख कदी मिटे ने ना मिट सकते हैं। बाणी ते ये कहती है तेरे दुख मिटणगे प्रभु की शरण में आके उन्होंने याद करके। इसनों जदों तक ज्ञान नहीं होएगा उदों तक सुख नहीं मिलेगा। अंतरीवी अनुभव नहीं होएगा उदों तक नहीं पता लगना की है की नहीं। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। जदों तक ज्ञान का अंजन नहीं मिलता, ज्ञान का सुरमा मन नूं नहीं मिलेगा, अखां विच ज्ञान का सुरमा नहीं पाएगा, उदों तक आनंद नहीं है। ये अखां जो कुछ वेख के आनंद माणदियां ने, फिर इन्हां अखां नूं पता लग जाना है जो कुछ मैं वेख के आनंद मान रहा ये सदा नहीं है। अखां नूं पता लग जाएगा। मैनूं वो ईरान दे फिरदौसी की गल याद आउंदी है। फिरदौसी नूं राजे ने कहा, हे फिरदौसी वड्डा तू ईरानी संत है, तू ऐसा कर दुनिया के उत्ते वड्डे वड्डे लोकी जम्मे ने, उन्हां दी जिंदगी विच वड्डे वड्डे वार्तालाप भी होए होणगे, बड़ियां सियाणियां सियाणियां गल्लां उन्हां ने कीतियां होणगियां, घटनावां होईयां ने दुनिया ते, वो लिख के मैनूं लिया के दे, मैं पढ़ना चाहुंदा हाँ। फिरदौसी कहंदा राजा लिख के ते मैं लिया देवांगा, पढ़िया तेरे तो नहीं जाना, इन्ना टाइम तेरे को नहीं हुंदा। कहंदे ने तू लिख के लेके आ। फिरदौसी कहंदा दुनिया के चुनिंदा लोकां दीयां गथावां मैं लिखियां ते 10 किताबां में लेके राजे को लै गया।
राजा अगे नाराज हो गया, कहते तेनों पता नहीं है मैं राजा, मेरे को इन्ना टाइम है, मैं 10 किताबां पढ़ा? नहीं, थोड़ा कर। फिरदौसी कहता दुख तो बड़ा लग्या, एडे महान लोगों दी गल्लां मैनूं कटनियां पैणगियां, पर मैं कट दित्तियां ते 6 किताबां फिर बना लगा। फिर लैके गया। राजा कहता तू पागल हो गया, 6 किताबां मेरे को इन्ना टाइम है? कहते फिर कट्टियां, पहला अथरुआं नाल कट्टियां, हुण हंझुआं नाल कट्टियां पहला, हुण मेरी अखां दे विचों जिहड़े अथरू सी समझ लो खून दे अथरू सी। क्यों? इड्डे वड्डे लोकां दीयां गल्लां नूं इरेज करना, मिटाउणा मेरे लिए बड़ा औखा सी। मैं एक किताब बनाई लै गया। राजा कहता ये भी मोटी है, होर छोटी कर। कहता राजा हुण मैं तेरे कोल नौकरी नहीं करनी, इस तो छोटा मैं नहीं कर सकता, बड़ी बेइंसाफी की है लोगों के जीवन नाल, मैं तां तेरे अगे दुनिया का इतिहास लिखिया है। अंत नूं फिरदौसी ने दरबार में जाना बंद कर दिता। फिरदौसी दे मरण का टाइम आया राजे का, कहता फिरदौसी नूं बुलाओ। जांदियां नूं वेख्या राजा पीड़ नाल रो रहा सी, मरण का टाइम, कहते रो रहा मैं मरण लगा। फिरदौसी नूं बुलाया। फिरदौसी नूं कहंदा मैनूं जिंदगी च बड़ा माखता रहेगा, मैं तेनूं दुनिया का इतिहास लिखण लई कहा ते मैं दुनिया का इतिहास पढ़ नहीं सकिया, जिंदगी विच सुख की हुंदा है। वो कहंदा राजा तेनूं सारियां किताबां पढ़न की लोड़ नहीं, 10 किताबां पढ़न की लोड़ नहीं, 6 किताबां भी पढ़न की लोड़ नहीं, 1 किताब भी पढ़न की लोड़ नहीं, मैं तेनों इक्को लाइन में दस देंगा दुनिया की सच्चाई की है। इक्को लाइन में, कमाल हो गई, एडियां वड्डियां किताबां इक्को लाइन में। कहंदा हाँ सच्चाई की है दुनिया की? कहंदा इक्को सच्चाई है दुनिया की, लोकी रोंदे दुनिया ते आउंदे ने, रोंदे ही जिंदगी विच जिउंदे ने, आ तेरे जिवें रोंदे ही मर जांदे ने, यही दुनिया की सच्चाई है, होर कोई सच्चाई नहीं है। लोकी पदार्थां दे अभाव विच रोए ने, सियाणे कहंदे ने इन्ना पानी 17 समुद्रां विच नहीं है जिन्ना इस मनुखा जाति की अखां विचों रो रो के निकलिया है। इन्ना मनुख रोया इस दुनिया ते, अज दा नहीं रो रहा, करोड़ां सालां तो रो रहा है। क्यों रो रहा है? अज्ञानता बस, पदार्थां दे रोने च। फिर ये रोने कदी समाप्त नहीं होणगे, सदा ही चलते रहणगे, क्योंकि सदा मंगा उठदियां रहणगियां ते वो जदों तई पूरियां नहीं होणगियां उदों तई दुख लगे ही रहना, रोज रोज मरेगा, रोज रोज दुख लगेगा और रोज रोज सुख नहीं मिलेगा। अज रोटी खाधी है, हुण नवीं चीज़ की मंग उठ गई, जदों तई वो नहीं मिलेगी फिर जो कुछ भी विच चलेगा, 2 साल जिहड़ी चीज़ नहीं मिली विच जो भी चलेगा बेसवादा रहेगा। क्यों? निगाह ते अगे टिक गई है। इस करके मनुख की निगाह उत्थे नहीं है जो कुछ इनू मिलिया होया है, निगाह इस दी अगे है। हरेक मनुख अपनी जिंदगी के 5 तो 10 साल अगे जी रहा है, अज दे विच नहीं जी रहा। सतगुरु जी महाराज कहते हैं तेरी जिंदगी आनंदमयी हो सकती है किवें? जे गुरु के बचनों नूं तू श्रवणे, उन्हां दी ओट प्राप्त करे। ओट का मतलब अपने मन में लागू करें, परमात्मा नूं अपनी जिंदगी में लैके आवें, उस दे विधान नूं समझे। विधान की है? प्रालब्ध की है? मैं कौन हाँ? जदों तई ये चीज़ां नहीं पता लगणगियां उदों तई दुख ही दुख है, चलता ही रहेगा, ये नहीं मिटना है कभी। इस जिंदगी कदे भी इस चक्कर विच ना रहना साध संगत भी मेरा दुख इस चीज़ करके है तो जदों ही ये मिल जाएगी मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। अज तो 5 साल पिछे जाओ, जिहड़ियां चीज़ां की मंग करते सी वो मिल गई ने, कि दुख मिट गया? नहीं, हजे भी है। तो ताई बाबा फरीद साहब कहते हैं, कहते फरीदा तेरे अंदर मंगा उठदियां ने दूजे दियां चीज़ां नूं वेख वेख के, दूजे दी चीज़ां नूं वेख के तेरे अंदर मंगा उठदियां ने, उन्होंने मिल गया मैनू नहीं मिलिया। कहते याद रखी दूजे नूं वेखना ही बंद कर दे, अज ही आनंद मिल जाएगा। दूजे नूं वेखना बंद कर, दूजे नूं वेखी जाना है, उहदा वेखना ही तेरे लिए साड़ा बन चुकिया है। उहदा वेखना, उसका वेखना ही तेरे लिए दुखों का कारण बन गया। रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो, फरीदा
ना देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो। दूजे दी चौपड़ी होई नूं वेख रहे हैं, जो कुछ दूजे नूं मिलिया उहदी भरा लभदा है, जो पदार्थ उहनूं मिले ने उहदी भरा लभदा है। ते याद रखी पदार्थां विच सुख नहीं है। उहनूं भी जाके पुछ जिहदे कोल पदार्थ ने, वह भी कहेगा नहीं मेरे कोल भी घट ने, जिहड़ा दूजा है उहदे कोल ज़्यादा ने। हरेक मनुख इस जिंदगी दे इस अभाव विच जी रहा। एक मनुख की वार्तालाप लिखता है, क्योंकि जदों तई मनुख ने परमात्मा के बचनों का आसरा नहीं ना रहा, जदों तैनूं परमात्मा की बाणी का पता नहीं लग्या, गुरु के शब्दों का ओट नहीं लई मन ने, उदों तई आनंद नहीं आएगा। परेशानी है। जदों तई इनू ये नहीं पता लग्या हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जदों तई ये अनुभव नहीं होएगा, सुनना वखरी गल है, सुनाउणा वखरी गल है, अनुभव हो जाना ये बड़ी वखरी गल है। जिसनूं इस चीज़ का अनुभव हो गया है वो आनंद विच जी रहा है, वो वखरी गल है। उहदे कोल करोड़ां रुपया ने तां भी वो आनंद विच है, कुछ ना भी होएगा तां भी आनंद विच है। दोवें अवस्थावां विच आनंद विच, क्योंकि जो वो कर रहा है सिर्फ अपने कर्म ते ध्यान दिंदा है, जो परमात्मा रिजल्ट दे ही जा रहा है उहदे ते आनंदित है। महाराज कहते जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। जिन्हां ने परमात्मा की पछाण कर ली है, सारिया चीज़ों के दाते बन गए ने। सारिया चीज़ों के रिद्धियां भी उन्हां दे कोल ने, सिद्धियां भी उन्हां दे कोल ने। सारी चीज़ का ही पता लग गया जिंदगी की है। असल च मनुख नूं परमात्मा जिस दिन मिलेगा पता की लगेगा, पता यह लगेगा मैं कौन हाँ। बस पहली गल तो मैं रहना ही नहीं है, वही है। उसनूं यही पता लग जाना है मैं कुछ सही नहीं, मैं तो मेरा भरम सी मैं हाँ, मैं नहीं सी। आपे दाता आपे भुगता जी, ये पता लग जाना है। ना मैं दाता सी, ना मैं खाण वाला सी, खाण वाला भी वही सी, देण वाला भी वही सी। मनुख दे ते परमात्मा दे विचकार इक्को ही दीवार है कि ये अपने आप नूं परमात्मा तो वखरी हस्ती समझदा है। बाणी कहती तू वखरी हस्ती नहीं है, तू वही है, तू वही है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपने आप नूं पछाणन की कोशिश कर तू कौन है। मनुख ने अपना सारा एड्रैस ही गलत भरिया होया, सारे एड्रैस। हुण जे एक चिट्ठी के उत्ते एड्रैस गलत लिख दईए, चिट्ठी सारी उम्र भेजते रहो कभी सीधी नहीं जाएगी, एड्रैस ही गलत है। जिस मनुख के कार्ड के उत्ते भेजनी किसी को कार्ड है, एड्रैस उत्ते गलत है। नंबर लगा रहे हैं किसी को फोन तो, नंबर ही गलत लाया तो फोन सारी उम्र नहीं मिलेगा, क्योंकि फोन नंबर ही गलत है। इस करके मनुख ने अपना पता ही गलत भरिया होया, ताई ये दुखी है, उवें दुखी नहीं है। इस चीज़ का पता इनू उदों लगेगा जदों माड़ा जिहा अभ्यास ही बनेगा, थोड़ा जिहा अपनी सुरत नूं परमात्मा वाल जोड़ेगा, सुरत शब्द नाल जुड़ना शुरू होएगी। हजे तो शब्द आउंदे ने इवें चले जाते हैं, जिवें टिब्बे दे उत्ते पानी पैंदा ते थल्ले चला जाता। की कह दिता गया की नहीं कहा कोई समझ विच नहीं आया। कदे भी वेखना टिब्बियां दे उत्ते पानी कदे नहीं खलोंदा, क्यों? टिब्बे खड़े हुंदे ने। इस करके जदों तई मनुख दे अंदर हउमे हुंदी है, गुर शब्द उहदे कदे नहीं खलोंदा। क्यों? हउमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै इक ठाए। हउमे का मतलब है मैं वखरी हस्ती हाँ, हउमे ये है। मैं कुछ हाँ, यदा मतलब हउमे है। तू ही सब कुछ है, ये समर्पण है, यही अवस्था है। भगत की अवस्था की हुंदी है? मैं कुछ नहीं हाँ, हाँ किच नहीं, किच आहे ना मोरा। ये शब्द दे विच ही महाराज कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हाँ, ते कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा ही है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा है ही नहीं है कुछ। शरीर तू बनाया, श्वास तू दिते ने, रोटी भी तू दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ साधन मात्र हाँ। जिस दिन ये पता लग गया महाराज के नानक हुक्म जे बुझै ता हूँ मैं कहे ना कोई,
फिर कदे ये नहीं कहेगा मैं भी कुछ हाँ। ये जिहड़ी मैं ही है यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। मैं इनू दूजे नू नीवा विखाउणा, मैं विखाउणा है। ये जदों तई मैं है तू किसी नू नीवा नहीं विखा सकेगा, किसी नू नहीं मार सकेगा, किसी नू कुछ नहीं दे रहा, देन वाला वही है, बस तेरी होमे तेरे हथों दवा रहा है। जिमें राजे दे अगे राजा हुंदा है, देन वाला वजीर सोना वंड रहा होए ते लोकां नू आखे मैं तुहानू सोना दे रहा, लोकी हसणगे कमला हो गए, तू ते अगे साधन है, देने वाला ते राजा है, तू देने वाला नहीं है। इस करके मनुख अपने परिवार दे विच सिर्फ साधन है और कुछ भी नहीं है। पालन वाला रब है, ये तो सिर्फ साधन है। ये नहीं भी होएगा होर साधन आ जाएगा। साधन है जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी धरिया, कोई किसी का आसरा नहीं। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाव करया। हे मेरे मना अपनी होमे का त्याग कर, तू सिर्फ कर्म ते ध्यान दे। तेनू रब ने बुद्धि दी हुई है, जितनी की दी है उस दे नाल अपने सही कर्म कर ते उहदे अगे बेनती कर, परमात्मा मेरे वास्ता यही है, इन्नी कि मेरी बुद्धि है, ये अनुसार मैं कर रहा। बख्शिश करना रिजल्ट देना उहदा काम है, ये साडा काम नहीं है। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्ब थोक का दाता। हरेक दुनिया की शक्ति उहदे कोल हुंदी है जिन्हें परमात्मा नू पहचान लिया। वो वखरी गल है, वो शक्ति की वरतों करता ही नहीं है, शक्तियां सारियां ही उहदे कोल ने। और मैं फिर कह दिया परमात्मा की शक्ति आउंदी उदों है जदों अंदरों इच्छा ही मिट जाए, मैनू शक्ति की लोड़ ही नहीं है, आउंदी उदों ही है। मनुख रिद्धियां ते सिद्धियां का दाता बनता ही उदों है जदों अंदरों इच्छा ही मिट जाए, मैनू इन्हां चीज़ों की लोड़ है। जिवें भगत रविदास जी को कोई सोने की पारस रख गया पंडित जी, कहते इहदा सोना बना लियो। हुण पारस तां ही आउंदा है जे अंदरों इच्छा ही मिट जाए सोने की। एक साल बाद आया, कहते मैनू तो एवें सी, तेरे वड्डे मकान बन गए होणगे, करोड़ों का तू मालक बन गया होएगा। कहते कित्थे है वो, तू पारस कित्थे है? कहते पता नहीं, वो पिछे पिया होएगा, जाके वेख ला मकान पिछे पिया। भाव पारस मिलता ही उदों है जदों मनुख की इच्छा खत्म हो जाए। अगे महाराज कहते ने तिसकी शरण सर्ब सुख पाव है, तिसकै दर्श सब पाप मिटाव है। उन्हां दा दर्शन, उन्हां दी संगत ही ऐसी हुंदी है जिन्हां अंदर रब वस गया है ना। सिर्फ उन्हां दे बोल, उन्हां दे वेखण दे नाल ही, जिन्हां दी संदड़ियां दुरमत वंझै मित्र असाडड़े से। उन्हां दे चेहरे दा नूर, उन्हां दी अखां दी वेखणी, उन्हां दे बोलण दा ढंग ही मनुख नूं जिंदगी बदल के रख दिंदा। मनुख दे अंदर ये चाह पैदा हो जाता, ऐसा मैं भी बना। उन्हां दे बोलण दे ढंग नाल, उन्हां दे वेखण दे ढंग नाल, उन्हां दी जिंदगी विच आनंद दे ढंग नाल। इस करके उहदे दर्शन तो ही अद्धियां मुश्किलां खत्म हो जांदियां। उन्हां दी जिंदगी दीयां साखियां सुन सुन के, दर्शन कर करके, उन्हां दी साखियां द्वारा दर्शन करिए, उन्हां दीयां जीवन दीयां गथावां द्वारा दर्शन करिए, मनुख दे अद्धे पाप मिट जांदे ने, खत्म हो जाते हैं अद्धे पाप। महाराज कहते ने सर्ब सुख पाव है, अवर सियाणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। सारियां सियाणपां छड़ दे, जे जिंदगी विच आनंद लैना है मेरे मन, तू उहदी शरण विच जा, भाव उहदी गल मन, वो की कहना चाहुंदा है। जिवें सतगुरु जी की शरण विच आए हैं, मनना करिए, ये कहना की चाहुंदे ने। शरण दे विच आउण दा मतलब ये हुंदा है, शरण विच मतलब आउण दा मतलब है जो कुछ मैं हाँ वो हुण मैं नहीं होवांगा। जिवें गुरु साहब की शरण दे विच ना, गुरु रामदास की शरण दे विच सिंह आए भाई गृहार्थ, वो आके महाराज नूं कहंदा भाई पदार्थ, कहंदे महाराज गृहस्थी लोक आ नाम ते जपीदा है, पर परिवार दे धंधियां विच लगे रहीदा है, परिवार भी पालना हुंदा है, ते किरपा करो अंदर शांति नहीं आ रही। हुण तिसकी शरण तिस जन की तू सेवा लाग। सेवा का मतलब जो कहंदा वही मन। महाराज कहंदे गल सुनो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਔਰ ਸੋਚ ਇਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਾਲਣੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਆਇਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਬਸ। ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਾ, 1000 ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਦੌੜ ਨੂੰ। ਦੌੜ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੈ, ਭੱਜ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦੌੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੌੜ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਵਣ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੌਂਪਣਾ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾ ਦੋ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਂਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਨ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੌਂਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ,
जे चली जाएगी फिर आ जाएगी, चली जाएगी फिर आना जाना तो लग्या ही है। इस करके मनुख दृष्टा बन जाए, यही यदी जिंदगी की मंजिल है। कल नूं असीं अगली जिहड़ा श्लोक है, सर्ब कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार, इस शब्द ते व्याख्या करांगे। परमात्मा सारियां कला का ज्ञाता है। ठीक है, बड़ियां चीज़ां सानू नहीं पता, कोई एक कला का ज्ञाता है, कोई दो कला का ज्ञाता है, कोई तीन कला का ज्ञाता है। हुण जिसे नूं चित्र कला आउंदी है उन्होंने ये नहीं है, जिन्होंने पेंटिंग आउंदी है उन्होंने राइटिंग भी आउंदी होएगी, ऐसा नहीं है। जिहड़ा लिखत दे विच माहिर है वो बोलण विच भी माहिर होएगा, ऐसा नहीं है। पर परमात्मा सारियां चीज़ां विच ही माहिर है, तां करके उत्तों हरेक चीज़ मंगी जा सकती है, क्योंकि सारा कुछ तो उन्होंने आउंदा है। जिहदे कोल सारा कुछ होए उहदे तो ही लिया जा सकता है। सो कल नूं इस शब्द की व्याख्या करांगे। सतगुरु जी किरपा करन, महाराज मेहरामत करन, अपनी जिंदगी विच आनंद की दिशा वाल चलीए। जो कुछ उन्हें दिता होया है उहदा शुकराना, जो कुछ नहीं मिले है उहदे वास्ते अरदास हो सकती है। पर यह भी ध्यान रखना, बहुत कुछ ऐसा है जे मन नूं पछाणोगे, मन पता है की मंगदा है। बाणी कहती है ये एक तो मंगदा है मेरी जिहड़ी उम्र है वो इन्नी लंबी हो जाए कदे मृत्यु ना आवे, ते जे जुग चारे आर जा होर दसूणी होए। जे मनुख कल्पना करे ना तेन उम्र कितनी चाहिए है, कहेगा 1000 साल, फिर सोचेगा 1000 साल तो खत्म हो जाएंगे, नहीं 2000 साल। कदे मन दे विच सोच के वेखना, जे इन्हूं पूछे कोई तेनों किन्नी जिंदगी विच माया किन्नी चाहिए, 100 करोड़, ये तो खत्म हो जाएगी 200 करोड़। कहते एक बारी एक बहुत अमीर मनुख सी, वो अपनी जिंदगी में इसे चीज़ परेशानी च लगातार तुरया फिरदा है। कहते तू परेशान क्यों है? कहते मैनूं धन घट मिले है। कहते किन्ना मिले है? कहते फायदा होया किन्ने 20 करोड़ का होया। कहते कमाल हो गई, ऐसे भी ने तू 20, कहते घट होया पिछली बारी 25 करोड़ का सी, तां परेशानी है। पिछले साल 20 करोड़ का होया सी, पिछले साल 25 का सी, ऐसकी 20 का है, इस चीज़ की परेशानी है। सो महाराज कहते ये तो जिंदगी के अप्स ते डाउनस ने, ये चलते ही रहने ने, क्योंकि जिंदगी समतल नहीं है, पहाड़ी रास्ता है जिंदगी। कदे नवाण आ जाती है, कदे चढ़ाई आ जाती है। जिंदगी पहाड़ी रास्ता है, ये बहुत कुछ भीड़ है, जंगल की तरह है, कदे हौली चलना पैंदा, कदे तेज चलना पैंदा है। ये आउंदे रहने ने, मनुख इन्हां दा साक्षी बने, इन्हां नूं वेखण वाला बने, यही जिंदगी का रहस्य है, ये ही आनंद है। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दिले खिमा करनी। सतगुरु जी महाराज किरपा करन, जिन्ने सत्संगी आप चल के आउंदे हो सारियां दे सिरां ते मेहर भरिया हथ रखण, सबना दे घरां परिवारां च सुख शांति नाम दी दात बख्शण। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।